नमस्कार, मैं अशोक व्यास। हैरमर स्टूडियो की इस खास प्रस्तुति में आपको स्वागत है। हैरमर स्टूडियो, जैसा कि आप जानते हैं, सकारात्मक धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए सेवा के भाव से बना हुआ है। इसे भी आपके सहयोग की आवश्यकता है, जो आप लाइक शेयर इत्यादि करके तो कर ही सकते हैं, अन्य रूपों में भी कर सकते हैं। पर आज बात करते हैं विशेष करके आसामाई हिंदू मंदिर। यहाँ पर माँ का आशीर्वाद लेने के लिए जब आप पहुँचते हैं तो आपको दर्शन होते हैं उस ज्योति के जो आई हैं काबुल स्थित आसामाई मंदिर से। ये बिल्कुल सही स्थल था जहाँ पर वात्सल्य ग्राम के सहयोग के लिए, जिसकी स्थापना एक समग्र परिकल्पना के साथ में साध्वी रीतिमा रितंबरा जी द्वारा की गई थी। मोहन मांझी जी, डॉक्टर यशपाल आर्य, डॉक्टर रुमेश आर्य, अंजू शर्मा जी और अन्य सब ने मिलकर, किशोर मल्लिक जी इत्यादि मित्रों ने मिलकर यह जो एक विशेष समर्पित सांझ बनाई। चलते हैं उस सांझ की तरफ। गुड इवनिंग, मेरा नाम डॉक्टर यशपाल आर्य है। मैं यहाँ पे आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ और यूनाइटेड स्टेट में 1968 से हूँ। पिछले करीब 20 साल से मैं साध्वी रितंबरा जी से भी जुड़ा हुआ हूँ। On principles of love and brotherhood. Although asceticism has been a revered way of life, the Rishi Munis and yogis of this land espouse the ideology of love and giving back to society and caring for the poor, needy and neglected. और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे ऐसी यशस्वी समाज प्रेमी महिला से मेरा संपर्क हुआ, जिन्होंने अपना सारा जीवन मानव सेवा के लिए अर्पित कर दिया है। साध्वी रितंबरा जी ने ये सोचा कि छोटे छोटे बच्चे जो अनाथ हो जाते हैं और लेडीज जो अनफॉर्चुनेटली विधवा हो जाती हैं, सबको परिवार की जरूरत है। और इन्होंने आश्रम में इस तरह के सेंटर बनाए, बच्चे और विधवा लेडीज का एक तरह से परिवार बनाया और वो बच्चे परिवार में ही बड़े हुए। इनके आश्रम से निकली हुई लड़कियां आज डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, उनकी शादी भी हो गई। The ancient Indian system of social security ensured that even the lowliest of the lives on this earth were accepted as family in ashrams. This, in a sense, is the principle of Vasudhaiva Kutumbakam. Under the able and inspiring guidance of her mentor, Yug Purush Pujya Swami Paramanandji Maharaj, Sadhvi Ritambara embarked on a journey of Jan Jagran. ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू पागल मेरा मेरे तेरा जिंदा। We are very happy to organize this program for Param Pujya Didi Maji, where we hold this event once a year when she comes to the US. Tonight we have a event that we've organized for Param Pujya Didi Maji at the Asamai Temple in Hicksville. We are hoping that all the devotees will get a chance to hear her pravachans, hear her bhajans, and we'll hear more about the Vatsalyagram program. She travelled extensively across India during this phase and was struck by the abysmal conditions of the orphans, young widows and the homeless senior citizens who were abandoned by their families. While she had complete faith in the charity of society, she was appalled by the way the facilities were run for these unfortunate souls. The overcrowded orphanages, Nari Niketans and old age homes, Sadhviji felt were completely out of place in the Indian context. She also felt that a child's healthy growth
was possible only in the family environment, and that each child, even an orphan, deserved an opportunity of growing up in a family. In which she puts an orphan together with a widow, together with a older widow, and thus recreates a home. A challenge that came her way when the ashram she was staying at received a day-old abandoned child at its doorstep. This incident triggered a chain of events that have consumed Sadhvi Ritambharaji's next 25 years of life, setting up Vatsalya Gram, a project that has shattered the traditional paradigm of providing for the orphans, widows, and senior citizens in society. Not one to budge from a challenging situation, Didi Ma, as Sadhviji is fondly and respectfully called, decided to practice a new way of providing a wholesome life support system for such children, a family system. I have visited Vrindavan several times. Most recent was in November 2021. What done by Didi Ma is eye-opener. She has built schools for disabled children as well as for regular children. Many children raised by her are now placed at high positions like army officer, in administrative post, etc. With full conviction in the Indian family system, Didi Ma also welcomed those unfortunate widows and elders cast away by their families to her Vatsalya Gram. Forming a unit of a grandmother, a mother and 5 to 7 children assigned to each such lady, the unit functions as a family, with the lady cooking homely food for the children and the grandmother supporting in bringing up the children, just like an Indian joint family. Didi Ma strongly feels that a woman's life acquires completeness only with the crown of motherhood. भागवत जी के महात्म्य में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मांतरों के कल्पांतरों के जब पुण्यों का उदय होता है, सद्गुरु की अनंत कृपा होती है, प्रकृति हमारे अनुकूल होती है, हमारे द्वारा किए गए सत्कर्म जब एकत्र होते हैं, तब जीवन में हमें सत्संग श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। बहुत कुछ है जो धन के बल पर, सत्ता के बल पर, रूप के बल पर, कामों के बल पर प्राप्त कर सकते हो, लेकिन संत दर्शन सत्संग ये बिना ईश्वरीय कृपा के प्राप्त नहीं होता। और आप सब तो परम भाग्यशाली हैं कि अमेरिका की इस धरती पर भी आपको परम पूज्य दीदी माँ जी का दर्शन, उनकी वाणी का बहुत बार आपको कृपा प्राप्त हुई है। और मैंने बहुत बार अपने गुरुदेव से श्रवण किया है
कि संत तो चलते फिरते तीर्थ होते हैं, जहां जाके बैठ जाते वही स्थान तीर्थ क्षेत्र में बदल जाता है। तीर्थ क्षेत्र में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और बंधुओं, वो लोग परम भाग्यशाली होते हैं जिनके सर पर सद्गुरु का हाथ होता है। आपके जीवन में वस्तुओं का अभाव तब खटकता है जब आप भीतर से खाली होते हो, लेकिन जिसके जीवन में, जिसके शीश पर सद्गुरु का हाथ होता है, उससे बड़ा बादशाह कोई और दूसरा नहीं हो सकता। पैरों में फटे जूते क्यों ना हो, पर आपके सिर पर यदि आपके सद्गुरु का हाथ है, क्योंकि वस्तुएं आपको कभी बादशाह नहीं बनाती। बादशाह तो भीतर आनंद से प्राप्त होता है। और वो आनंद कहां से मिलेगा? वो आनंद आपको किसी संत चरण से नहीं मिलेगा, क्योंकि जानकारी और ज्ञान में बहुत अंतर होता है। बहुत बार हम शहरों में रहते हैं, बहुत एक्सपोजर होता है, मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं, फिजिक्स पढ़ लेते हैं, बायो पढ़ लेंगे, आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, आपको सब्जेक्ट की जानकारी हो सकती है। अभी तो आज चैनल्स पर फटाफट न्यूज आती है, आपको थोड़ी देर में देश दुनिया की जानकारी हो जाती है। अपनी सोसाइटी से बाहर निकलिए तो सोसाइटी में क्या हो रहा है जानकारी मिल जाती है। जानकारी एकत्र करना बहुत आसान है, पर जानकारी और ज्ञान में बहुत अंतर होता है। ज्ञान तो किसी महापुरुष संत के चरण से प्राप्त होता है। ज्ञान वैसा ही है जैसे आप किसी सागर में जाकर अंजलि में जल भरे और आप उस जल को जो पिएंगे तो वो जल कैसा होता है? वो जल खाली होता है, मुख को छील लेता है, नमकीन होता है, आपका मुख पूरा छाल युक्त हो जाता है। लेकिन वही जल जब सूरज की तप्त रश्मियां पड़ती हैं और वह वाष्प बनकर के जाता है और फिर मेघ बनकर बरसता है, उसी बादल के जल को जब आप अंजलि में पीते हो तो वो खारी नहीं होता, वो मीठा हो जाता है। ऐसे ही जब हम संत चरणों में बैठ करके उस प्रसाद को आत्मसात करते हैं, वह हमारे जीवन को दिव्य और भव्य बनाता है। और बिना जीवन में सत्संग के मनुष्य के जीवन का कल्याण कभी हो नहीं सकता। क्योंकि बहुत बार हमें लगता है कि हम बड़े सर्वश्रेष्ठ हैं, हम मनुष्य बन गए, परंतु मनुष्य बनने की प्रक्रिया मत खाने पीने सोने और भोगने से नहीं हो जाती। क्योंकि खाना पीना सोना भोगना होता है वो तो पशु भी करता है। आप देखिए, क्या खाने पीने का काम पशु पक्षी नहीं करते हैं? वो भी करते हैं। आप कहोगे जी हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमने कहा क्यों सर्वश्रेष्ठ हैं? तो बोले हम सृष्टि बनाते हैं, इतने सुंदर घर मकान बनाते हैं। मैंने कहा अच्छा, आप जब घर मकान बनाते हैं तो कोई आर्किटेक्ट आपके घर का नक्शा बनाता है, किसी इंजीनियर से आप कंसल्ट करते हो कि कैसे बनाना है, फिर आप लेबर कोई काम करने वाले मजदूर होते हैं, बाहर से मटेरियल कलेक्ट करके लेके आते हो, फिर घर में कौन सा क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कौन सा मटेरियल लगाएंगे। पर आपने कभी बया पक्षी को देखा? भारत आए होंगे तो कभी आपने बया पक्षी की बात सुनी होगी। वो बया पक्षी ऐसा घोंसला बनाता है कि आप देख करके दंग रह जाए। कैसे वो ऊन की स्वेटर की तरह से उसको पूरे घोंसले को बुनता है। नक्शा कैसा, इंजीनियर वो खुद मटेरियल को खुद कलेक्ट करता है कि कौन से मटेरियल से मेरा घोंसला बनेगा, कहाँ अंडे देगा, कहाँ झरोखे से झांकेगा। बड़ी बड़ी आंधियां आती हैं, पेड़ों को जड़ से उखाड़ देती हैं, और उसके घोंसले को टस से मस नहीं कर पाती। तो हमसे अच्छा घर मकान तो पशु पक्षी भी बना लेते हैं। आप कहोगे जी हम बड़े सर्वश्रेष्ठ हैं, हमने कहा क्यों? बोले हम बहुत सुंदर गाते हैं। तो हमने कहा कभी किसी कोयल को गाते हुए देखा है? उसको गाते हुए देखोगे तो श्रेष्ठ गाने का दम भी छूट जाएगा। आप बोली जी हम बहुत श्रेष्ठ, हमने कहा ऐसा क्या हो गया? बोले हम बहुत सुंदर नृत्य करना जानते हैं। मैंने कहा अच्छा, कभी मोर को नृत्य करते हुए देखा है? प्रकृति से प्रसन्न होकर के जब मोर मतवाला होकर अपने संपूर्ण पंखों को फैलाकर जो नृत्य करता है, उसकी छटा देखिए। आप बोले जी हमसे सृष्टि चलती है। हमने कहा कैसे? बोले हमारी संतानें होती तो संसार चलता है। हमने कहा शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, उन 84 लाख योनियों में मनुष्य की तो एक योनियां है, बाकी योनियां किसकी है? किसकी है वो योनियां? आपने कहा जी हम सर्वश्रेष्ठ हैं। हमने कहा क्यों? बोले हम देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। हमने कहा अच्छा, घर में व्यक्ति कैसे भी रहता है, लेकिन जब घर से बाहर जाता है तो शीशे में कितनी बार मुख देखता है, मैं ठीक हूँ, मेरा बाल बाल सब ठीक है, लेकिन कभी किसी गिरगिट को देखा?
बिना वस्त्र बदले वो भी दिन में 3-4 बार तक बदल देता है। तो खाना पीना सोना और भोगना वो तो पशु नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा। क्यों कहा? क्योंकि भगवान का अस्तित्व, ब्रह्म का अस्तित्व, चेतना का अस्तित्व तभी तक है जब तक मनुष्य है। यदि मनुष्य को हटा दो तो उस ब्रह्म की चिंतन करने वाला, उस ईश्वर का नाम लेने वाला दूसरा कोई और नहीं हो सकता। ये है मनुष्य जन्म लेने की सर्वश्रेष्ठता। क्योंकि खाना पीना सोना घूमना वो अन्य योनियों में भी है, और यदि हम वही करके चले जाएंगे तो उनमें और हमें कोई अंतर नहीं हो सकता। सनातन क्या है? सनातन है जो किसी चींटी से लेकर के उस ब्रह्म तक में एक ही चेतना का दर्शन करता है। मेरा शरीर पंच भौतिक तत्वों से बना, पंच भौतिक तत्वों में विलय हो जाएगा, लेकिन मेरे भीतर भासने वाली वह चेतना, वह आत्मा न जन्म लेती है, और जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु कैसी? ये ज्ञान ही आपको मोक्ष बना लेता है और आपको हमेशा के लिए अमर कर देता है। क्योंकि आप पुण्य करते हैं स्वर्ग के लोक में, और आप पाप करने से डरते हैं कि कहीं नर्क ना मिल जाए। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्तृत्व करता है, ज्ञान के आधार पर चलता है, न उसे स्वर्ग का लोभ होता है और न उसको नर्क का भय होता है। इसीलिए मैंने कहा कि जीवन की सर्वश्रेष्ठता है मनुष्यत्व को प्राप्त करना, और वह सुंदर तभी हो सकता है जब आपके जीवन में सत्संग होता है, कुछ श्रेष्ठ गुरु के चरण आपको प्राप्त होता है। हम गुरु की बात करें, गुरु घंटालों की, मुझे दीदी माँ जी कई बार कहते ना, मोड़ मुड़ाए 3 मोड़, सिर की मिट गई खाल, बनी बनाई रोटी मिले लोग कहे महाराज। मात्र साधुता के वस्त्र पहनने से साधु नहीं बन जाते। साधुता तो स्वभाव होता है, और वो तब आता है जब आपके जीवन में श्रेष्ठ आप किसी गुरु की सन्निधि को प्राप्त करते हो। और बिना पात्रता के तो आप कभी कर नहीं सकते। मंत्रा को भी तो प्रभु राम का दर्शन हुआ था ना, हुआ था ना, लेकिन क्यों कल्याण नहीं हो पाया? क्योंकि दर्शन भी तब श्रद्धा का कारण बनते जब आपने सत्संग श्रवण किया होता है। कई बार व्यक्ति कौन आपके पास से निकल गया, आपको उसकी विशेषता ही ना पता हो तो आपको उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बताते कि हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, तो आपके हृदय के अंदर श्रद्धा का जन्म होता है। अमृत 84 कोष में आते ना, बहुत दुनिया से, देश भर से लोग आते हैं, विश्व भर से लोग आते हैं ब्रज में 84 कोष के दर्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि अरबों रुपए की आप संपदा के मंदिर बनाते हो, लेकिन वह स्थान जहाँ भगवान स्वयं के रूप में प्रकट होते, वहां श्रद्धा खुद उत्पन्न हो जाती है, श्रद्धा खुद उत्पन्न जाती है। इसलिए जीवन में पात्रता चाहिए। और सत्संग भी ऐसा ही है बंधुओं कि पेट में भूख ना हो और भोजन की बात की जाए तो बेमानी है, कंठ में प्यास ना हो और पानी की बात की जाए तो बेमानी है। ऐसे ही सत्संग की आपके अंदर उत्कंठा ना हो तो आप नमाज की तरह आगे बैठ तो जाते हैं, परंतु वो कल्याण कभी करता नहीं। उसके लिए गहरी प्यार चाहिए, जिज्ञासा चाहिए, मुमुक्षा चाहिए, उत्कंठा चाहिए। और जब वो गहरी प्यास आपके भीतर घटित होती है तो जीव को कहीं भागना नहीं पड़ता, वो जहाँ बैठा होता है वहीं उस आनंद की प्राप्ति को करने लग जाता है। ये वैसे ही है जैसे एक बालक अपनी माँ से हट करने लगा, जिद करने लगा, बोले माँ सब लोग मेले में जाते हैं, मुझे भी मेला देखना है, तो मुझे लेके चलना। उसकी माँ कहती है कि अभी समय नहीं है, मैं तुझे फिर लेके चलूंगी। फिर बच्चा कुछ दिन के बाद, माँ सब जाते हैं, तू लेके चलना। आज जिद करके बैठ गया कि भोजन नहीं करूंगा, आज तू मुझे लेके नहीं जाएगी। उसकी माँ अपने बच्चे का हट पूरा करने के लिए उसको मेले में लेके गई। अब जब वो मेले में पहुंचे तो उस मेले में इतना विशाल मेला था, हजारों लोग उस मेले में थे, बड़े बड़े झूले, घाट बाट दुकानें, सर्कस, खाने पीने की दुकानें, खेल खिलौने की दुकानें। वो बच्चा तो उमंग में भर गया, इतना उसको उल्लास था। इधर उधर देखने लगा तो देखा बहुत सुंदर सुंदर हरे पीले नीले गुब्बारे लेकर के गुब्बारे वाला गुब्बारा बेच रहा था। उसने कहा माँ देखना कितने प्यारे प्यारे गुब्बारे हैं, तो एक मुझे दिला देना। तो उसकी माँ कहती है कि लाल अभी तो मेला घूमना है ना, कहाँ हाथ में पकड़े पकड़े घूमेगा, आगे चल, बाद में दिला दूंगी। बच्चा आगे चल गया। थोड़ी देर के बाद ने देखा कि बड़ी सुंदर सुंदर खेल खिलौने की दुकानें थी। उसने कहा माँ देखो ना कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं, तो एक गुड्डा मुझे दिला देना।
उसकी माँ कहती है पुत्र आगे चल, फिर दिलाऊंगी। बच्चा फिर आगे चल गया। इतनी देर में उसकी बड़े से झूले में नजर गई। माँ देखो ना सब कैसे झूल रहे हैं, मुझे भी झूले में बैठना है, मुझे बैठा दो ना। माँ कहती है आगे चल। बच्चा कहता है कभी कुछ दिलाती नहीं, खिलाती नहीं, बैठाती नहीं, आगे चल आगे चल। अब तो जिद करने लगा, बोले नहीं मुझे झूले में बैठना है। इतनी देर में उस भीड़ का धक्का लगा, और जब धक्का लगा तो बच्चे का हाथ माँ के हाथ से छूट गया। बच्चा कहीं और चला गया, माँ कहीं और चली गई। माँ अपने बच्चे को ढूंढ रही और बालक भी अपनी माँ के लिए व्याकुल हो गया, अधीर हो गया, रोने लगा, चित्कार करने लगा। नन्हा सा वो बच्चा। किसी सज्जन ने देखा कि कहीं भीड़ में कुचल ना जाए, शायद लगता है किसी से बिछड़ गया, रुदन कर रहा था, उस बच्चे को गोदी में ले लिया। कहा कि क्यों रोता है? बोले मुझे मेरी माँ चाहिए। उस बच्चे को चुप कराने के लिए कई बार हम बच्चों को जब चुप कराना होता है तो खेल खिलौने देते हैं, तो वो कहता है कि कुछ खाएगा? बोले नहीं मुझे तो मेरी माँ चाहिए। ये खिलौना लेगा, गुड्डा लेगा, बंदूक लेगा? बोले नहीं नहीं मुझे तो मेरी माँ चाहिए। झूले में बैठेगा? बोले नहीं मुझे मेरी माँ चाहिए। कुछ दिन पहले जिस बच्चे को उस मेले में इतना आकर्षण था, इतना उल्लास था, उत्साह था, उसके पैर आकाश में नाच रहे थे, अब वो बच्चे को मेले में सुख नहीं है। सारा वह सुख उसका दुख में बदल गया। अब वो मेला रास नहीं आ रहा, वो वस्तु अच्छी नहीं लग रही। अब उसे क्या चाहिए? माँ चाहिए। जैसे उस मेले में रहने के बाद भी उस बच्चे को उसकी माँ की चाहत है, उस वैसी ही चाहत जब इस संसार में रहकर के भी जीव के हृदय के अंदर ईश्वर को पाने के लिए हो जाती है ना, तो फिर संसार में कुछ भी पाना चाहिए, कुछ भी पाना नहीं करता। वो कहती प्यास चाहिए, वो जिज्ञासा चाहिए, वो मुमुक्षा चाहिए। और जब उत्कंठा हृदय में आपके पैदा होती है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो आत्मा राम तो भीतर ही है। बस आपने भीतर जा दिया और वो आपकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। ये तब होता है जब गुरु कृपा होती है। बिना गुरु कृपा नहीं, बिना पात्रता के वो जीवन में आप प्राप्त नहीं कर सकते। वो तभी होता है जीवन में जब आपके भीतर उसके लिए पात्रता होती है। वो अभी जन्माष्टमी के दिन एक मंदिर में हम पात्रता की ही बात कर रहे थे, तो मैंने एक विषय कहा था कि आपने शायद सुना भी होगा कि जब कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध होना सुनिश्चित हो गया था, तब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के गए थे और समझाया था उनको कि पांडव भी तो तुम्हारे भाई हैं, और जब भाई है तो फिर भाई को आधा हिस्सा मिलना चाहिए, ये न्याय संगत है। परंतु दुर्योधन इतना बड़ा उदार हृदय न ला सका और वो अपने भाई को आधा हिस्सा नहीं दे पाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम आधा नहीं दे सकते तो 5 गांव ही दे दो। इतना बड़ा भारत का साम्राज्य, तुम उसमें से 5 गांव ही दे दो। तब भी दुर्योधन कहता है बिना युद्धे न केशवा, बिना युद्ध के तो मैं सुई की बराबर 9 की बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था दुर्योधन, तुमने अभी युद्ध की विभीषिकाएं नानी दादी से लोरियों में कहानियों में सुनी होगी, अभी तुमने उसका दर्शन नहीं किया। और जब युद्ध होना सुनिश्चित हो गया तब फिर दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से सहायता लेने के लिए द्वारिका पहुंचे थे। जब द्वारिका में पहुंचे तो भगवान प्रभु अपने बिस्तर पर शय्या पर लेटे हुए थे। दुर्योधन ने देखा कि प्रभु विश्राम में हैं, तो वो उनके सैया के बराबर उनके पलंग के सराहने जो एक आसन रखा हुआ था उस आसन पर जाकर के बैठ गए। थोड़ी देर के बाद अर्जुन भी पहुंचे। अर्जुन ने देखा कि अच्छा दुर्योधन भैया तो मुझसे पहले आकर के बैठे हुए हैं और प्रभु विश्राम में थे, तो उन्होंने भी जगाया नहीं। सोचा कि सोते हुए प्रभु को उठाना नहीं चाहिए, और वैसे भी हमारे कहते ना कि कोई सो रहा हो तो जगाना नहीं चाहिए। और ये भी तो अच्छा ही है ना, इस बहाने प्रभु की शरण में बैठने का और अवसर मिल जाएगा। तो अर्जुन प्रभु के चरणों की तरफ आकर के भूमि पर बैठ गए। कुछ समय के बाद द्वारिकाधीश की आंखें खुली। और बंधुओं, ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जब आंखें खुलेंगी तो दृष्टि कहाँ जाएगी? जो सिर के ऊपर शैया पे चढ़ करके उस आसन पर बैठा था उस पर, या जो चरणों की तरफ बैठा हुआ था। जैसे नेत्र खुले तो भगवान की दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। अरे अर्जुन कब आए, जगाया क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं? अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए,
बोले प्रभु ज्यादा देर नहीं हुई और इस बहाने आपके चरणों में बैठने का और मुझे सुख प्राप्त हो गया। तभी पीछे से दुर्योधन ने कहा कि प्रभु मैं भी आया हूं। अच्छा, भगवान दुर्योधन नहीं कहते, कहते अच्छा सुयोधन तुम भी गए हो? बोले हाँ प्रभु, आपको तो ज्ञात ही है कि हमारे कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होना सुनिश्चित हो गया है, इसलिए हम आपसे सहायता लेने के लिए आए हैं। तब प्रभु ने कहा कि देखो दुर्योधन, मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी है, इसलिए पहले चुनने का अवसर मैं अर्जुन को दूंगा। परंतु याद रखना, एक तरफ मेरी समस्त नारायणी सेना होगी और एक तरफ अकेला निहत्ता मैं स्वयं खड़ा होऊंगा। अब चुनाव करना है कि तुम्हें नारायणी सेना चाहिए या तुम मुझे स्वीकार करते हो, और याद रखना मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु ये आपकी कृपा है कि आपने मुझे पहले अवसर दिया, परंतु दुर्योधन भैया मुझसे बड़े हैं और वो मुझसे पहले आए हैं, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप चुनने का अवसर उनको दें। दुर्योधन ने सोचा कितना मूर्ख है, इतना बड़ा इसको अवसर मिला, इसने वो अवसर गंवा दिया और मैं समय व्यर्थ नहीं करूंगा। एक ही पल के अंदर दुर्योधन ने सोचा कि युद्ध तो सेना के बल पर होता है, अस्त्र शस्त्रों से होता है, ये निहत्ते होंगे, अकेले होंगे, शस्त्र भी ग्रहण नहीं करेंगे, मैं इनका क्या करूंगा। एक ही पल में उस सेना को चुन लिया और भगवान की सेना लेकर के दुर्योधन चले गए। प्रभु कहते हैं अर्जुन तुमने ये क्या किया? मैंने इतना सुंदर तुमको अवसर दिया, तुम्हें चुनाव करने का अवसर दिया और तुमने हाथ से गवा दिया। हार निश्चित है तेरी, हर पल रहेगा तू उदास। माखन दुर्योधन ले गया, अब छाछ बची तेरे हाथ। प्रभु ने ऐसा कहा तो अर्जुन ने चरण पकड़ लिए। प्रभु के चरण पकड़ के कहते हैं कि जीत निश्चित है मेरी और भक्त कभी हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। क्या साक्षात नारायण हो, वहां फिर सेना का क्या हो सकता है। बंधुओं, ये दृष्टि की बात है, ये आपके विवेक की बात है। वो कहां से आता है? जब आपके पास में अपने गुरु का ज्ञान होता है। और हम तो बहुत भाग्यशाली है बंधु। जैसे कोई कहता है ना कि हम छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, कोई कहता है महाराणा प्रताप के वंशज हैं, ऐसे ही हमें अपने अंदर गौरव लगता है कि हम पूज्य दीदी माँ जी के शिष्य हैं, जिन्होंने पूरे भारत के अंदर राष्ट्र का हिंदू का झंडा बोझ दिया। लोग अपने पीछे लोगों को लगाते हैं कि मंत्र दीक्षा लेकर शिष्यों की संख्या बढ़ाते हैं, पर पूज्य दीदी माँ उनमें से नहीं है। आज भी कलयुग में त्रेता जैसी सोच का दर्शन करना है तो आपको पूज्य दीदी माँ जैसे संतों की शरण में आना पड़ेगा। वो जब किसी को भारतीयता के सूत्रों से जोड़ते हैं तो कहते हैं कि यदि किसी के हृदय में देश प्रेम है, समझ लो कि वो मेरा अपना ही है, ऐसे भावों से जिनका हृदय भरा। और आज तो बहुत अनुकूल परिस्थितियां हैं भारत के अंदर कि कोई भी व्यक्ति माइक पर देश धर्म सनातन की बात कर सकता है, लेकिन हम सब उन दिनों के भी साक्षी रहे हैं कि जब हिंदू कहना कि भारत के अंदर एक सांप्रदायिक शब्द हुआ करता था, तब गली गली घूम करके वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, कह करके मरे मुर्दे में प्राण देने का कार्य पूज्य दीदी माँ जी ने किया था। और आज उनकी ही प्रेरणा और उनके समर्पण त्यागराम जन्मभूमि में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हम सब भाग्यशाली पीढ़ी हैं कि जो हमारी 71-72 पीढ़ियों ने जो संघर्ष किया, हम वो भाग्यशाली पीढ़ी है कि हम प्रभु राम का मंदिर अपनी आंखों से बनते हुए भारत के अंदर देख रहे हैं। ये हमारे बहुत बड़े गौरव का विषय है। पूज्य दीदी माँ जी के द्वारा जब राम जन्मभूमि का संघर्ष में संलग्न थे तो बहुत बार भगत सिंह आजाद की तरह वेश बदल करके वो देश को जागृत कर रहे थे। धारा 144 लगी होती थी, 4 लोग भी इकट्ठे नहीं हो सकते थे। लेकिन उस दौर में जब सोशल मीडिया नहीं थी, चैनल्स नहीं थे, मोबाइल्स नहीं थे, तब 10-10, 15-15 लाख व्यक्ति उनको सुनने के लिए भारत के मैदानों में एकत्र हुआ करता था। उनकी वाणी साक्षात सरस्वती की वाणी थी। वो पूज्य दीदी माँ जैसे वो पार्वती होती ना, भगवती, वो कितनी सौम्य होती है ना, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आती है
तो वही पार्वती काली बन जाती है और दुष्टों का दमन करती है। ऐसी पूज्य दीदी माँ उस समय साक्षात काली के रूप में गरज गरज करके पूरे भारत को जगा रहे थे और उसी का सुपरिणाम है कि आज हम भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व का दर्शन करते हैं। और बंधुओं, जब पूज्य दीदी माँ जी राष्ट्र जन्मभूमि का कार्य कर रहे थे तो बहुत बार अनाथ आश्रम, महिला आश्रम, वृद्धाश्रम के अंदर उनको समय बिताने का अवसर मिला। तो उनके हृदय के अंदर एक वेदना ने जन्म लिया कि हम सब जानते हैं कि किसी दो लोगों के परस्पर मिलन से किसी तीसरे जीव की उत्पत्ति होती है। क्या परिस्थिति रही, क्या कारण रहा, कोई बच्चा अपनी माता पिता से विलग हो गया या छोड़ दिया गया। आपने देखा कभी कि गाय का बछड़ा भी जन्म लेने के बाद चटकार मारने लग जाता है? किसी पक्षी का बच्चा भी 2-4 महीने में उसके पंख निकल आते हैं, लेकिन एक मनुष्य का बालक होता है जिसे सर्वाधिक समय उठ करके चलने में लगता है। पूज्य दीदी माँ जी को लगा कि किसी बालक को देख के कि कोख तो मिल गई, पर यशोदा की गोद मिल जाए तो ये भी कान्हा की तरह प्रेम पा सकता है। तो उन्होंने उस स्वरूप को, उस भाव को धरातल दिया कि 2 रोटी देना बड़ी बात नहीं, 2 रोटी कमाने लायक बनाना बड़ी बात होती है। और वैसे भी बंधुओं, हम भारत की भूमि से रहने वाले हैं, जहाँ पशुओं के भी नाथ पशुपतिनाथ हैं, जहाँ नाथों के नाथ द्वारिका नाथ है, और रघुनाथ की भूमि पर कोई अनाथ कैसे हो सकता है। इस भाव को साकार करते पूज्य दीदी माँ जी ने 52 एकड़ में वात्सल्य ग्राम बनाया। वहां किसी एक स्त्री ने अपने आप को समर्पित किया, वो बच्चे की माँ बनी यशोदा। रक्त का संबंध नहीं है, भाव संबंध है। और एक घर के अंदर एक यशोदा माँ, एक नानी, एक मासी, 8-7 बच्चे, और वो भरा पूरा वो घर एक परिवार का बराबर वाला घर उस बच्चे की मौसी का घर है। ऐसा पूज्य दीदी माँ जी ने भाव संबंधों का पूरा गांव बसाया, जहाँ बच्चों के अपने अपने घर है। माँ का दूध नहीं मिला, पर हमारे यहाँ दूध को माँ कहा गया। पूज्य दीदी माँ जी ने बड़ी सी गौशाला बनाई कि उस गौशाला के दूध से बच्चे का पोषण हो। फिर बच्चे पढ़ लिख करके योग्य बने तो संवित गुरुकुल इंटरनेशनल विद्यालय बनाया। आज पूज्य दीदी माँ जी इस यात्रा को करते हुए 30 वर्ष हो गए हैं। वो बच्चे बड़े हुए, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आर्किटेक्ट, कोई बीटेक, कोई एमबीए करके वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। बड़े बड़े समृद्ध परिवार, सामर्थ्यवान परिवार आगे से बढ़कर पूज्य दीदी माँ जी से उनकी बेटियों के हाथ मांगते हैं और पूज्य दीदी माँ जी विधि विधान से विवाह करके उसको डोली में बिठा के, पालकी में बिठा करके विदा करते हैं। ये पालने से लेकर के पालकी तक की यात्रा है। बंधुओं, घर मकान बना देना, बिल्डिंग बना देना जैसा धन होता है, आप उनकी रफ्तार से काम करते हो। आप कोई भी काम धन होगा 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में खड़ा कर दोगे। लेकिन किसी बच्चे की जिंदगी को बनाने के लिए बहुत साधना चाहिए, धैर्य चाहिए। हमारे 1-2 बच्चे होते हैं, आप जानते होंगे कि उसकी परवरिश करने में कितनी शक्ति लगती है। आप पूरे दिन इंगेज रहते हो, लेकिन पूज्य दीदी माँ जी के कितने बच्चे हैं? 2500 से अधिक बच्चों का पोषण परम शक्ति पीठ संस्था के माध्यम से हो रहा है। इसमें बड़ी संख्या में वो बच्चे हैं, बड़ी संख्या में वो बच्चे हैं जो वात्सल्य ही जिनका आधार है, वात्सल्य ही जिनका परिवार है। सब लोग अपनी तरीके से काम करते हैं, बहुत सारे सुंदर कार्य भी हो रहे हैं, लेकिन वात्सल्य की एक जो विशेषता है जो मेरे हृदय को बहुत अभिभूत करती है कि बंधुओं, आपने देखा होगा कि हम सब समृद्धशाली होते हैं, हमारे पीछे हमारी पहचान भी होती है, हम आर्थिक रूप से भी मजबूत होते हैं, लेकिन उसके बाद भी लगता है ना कि मुझे सब लोग जाने। मैं सोशल मीडिया में दिखूं, सब लोग मुझे पहचाने कि मेरा नाम क्या है, लेकिन आपने कभी महसूस किया उस बच्चे के अंदर कैसी कुलबुलाहट होती होगी? वो सोचता होगा कि मेरे माता पिता कौन थे, मैं किनकी संतान हूँ, मेरी पहचान क्या है? तो पूज्य दीदी माँ जी ने कहा कि ये बच्चे अपनी पहचान को कभी ना तरसें। इसलिए हम सब जितने भी हैं, सब ऋषियों की संतानें, रघु, गौतम, कणाद, कश्यप, वात्सल्य के आंगन में जो बच्चे आए, पूज्य दीदी माँ जी ने अपने एक सदगुरुदेव का नाम उन बच्चों को दिया। आप आज पूछे कि तुम्हारा परिचय क्या है, वो गर्व से कहेगा मेरा नाम रिद्धि परमानंद, सिद्धि परमानंद, सोहम परमानंद, सची परमानंद। मैं 12th का स्टूडेंट हूँ, मैं एमबीए कर रहा हूँ, मैं बीटेक कर रहा हूँ। अपनी पहचान के साथ उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य पूज्य दीदी माँ जी के द्वारा हुआ है। और अभी हम सब भारत से लेकर अमेरिका तक जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे थे।
वो जो जन्म उत्सव है ना, जो यशोदा कृष्ण की जो गाथा है, जो कथा है, द्वापर की कथा है, और द्वापर की वह कथा आज कलयुग में भी अगर यशोदा कृष्ण के शाश्वत स्वरूप का दर्शन यदि कहीं करना हो ना, तो आपको वात्सल्य में वो यशोदा और वो कान्हा दिखाई देंगे कि कोई एक यशोदा अपने आंचल के अंदर कान्हा को लेकर के कैसे उसको बड़ा कर रही है। और आपको Although Yashoda was not the natural mother of Lord Krishna, she showered all her love on the child and achieved fulfillment. This is exactly how Didima envisioned Vatsalya Gram. Vatsalya Gram today provides a home for close to 1,000 children through such multiple family units. To begin with, the residential complex has been designed in such a way that each family unit gets its personal space adequately. Moreover, the complex is so designed that the number of units can be easily increased without compromising on the ultimate integration as one large family unit. आपको बहुत आश्चर्य होगा कि हम देखते हैं घर के अंदर कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता का, बुआ का, मौसी का, चाचा चाची का कहीं ना कहीं रूप, उसका कोई ना कोई भाव उस बच्चे में आता है। लेकिन वात्सल्य के आंगन में ऐसे कितने बच्चे होंगे जब पूज्य दीदी माँ जी ने किसी यशोदा की गोदी में उस बच्चे को दिया तो 8-9 महीने में उस बच्चे की शक्ल उसकी माँ से मिलने लग गई। ये प्रेम का प्रताप है, ये प्रेम का प्रतिफल है। और वैसे भी रात्रि में कोई आपको उठाकर पूछे कि कान्हा की माँ का नाम बताओ, तो शायद ही कोई बिरला होगा जो देवकी का नाम लेगा। हर कोई एक ही भाव में कह पड़ेगा यशोदा ही कान्हा की माँ है। इसे जन्म से भी बड़ा उसको पोषण करने वाला होता है। और आज वो बच्चे समाज की मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। पूज्य दीदी माँ जी ने वृंदावन में बेटियों के लिए मिलिट्री एकेडमी बनाई है और हिमाचल प्रदेश के अंदर बेटों के लिए मिलिट्री एकेडमी के साथ संयुक्त गुरुकुलम बनाया है। बहुत सुंदर पहाड़ियों के बीच में वो मिलिट्री स्कूल बनाया है बेटों के लिए। दीदी माँ जी का भाव है कि हमें अपनी रक्षा करने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा कि भगवान अवतार लेंगे। भगवान भी कहते हैं कि मैं उसकी मदद करता हूँ जो स्वयं की मदद करते हैं। इसलिए बच्चे अपनी आत्मरक्षा कर सके, डिसिप्लिन में जीवन जी सके, उनके अंदर संघर्ष से जूझने की प्रतिभा हो। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ आर्मी जैसा डिसिप्लिन होगा तो उनका जीवन सुंदर बनेगा। इसलिए बेटों के लिए उन्होंने मिलिट्री एकेडमी बनाई है। पिछले साल भारत सरकार ने 17 विद्यालय को इसका रजिस्ट्रेशन दिया था और 17 विद्यालयों में से पूज्य दीदी माँ जी के द्वारा स्थापित संयुक्त गुरुकुलम बेटी और बेटों के लिए इन दोनों का चुनाव उस विद्यालय के रूप में हुआ है। ये हम सबका बहुत गौरव का विषय है। भागी तो सत्संग एक ऐसा आगाध सागर है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनाई बहुविधि सब संता। इसमें तो जितना प्रवेश करो आपको उतनी गहराई मिलती जाती है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जिसने समय को पहचान लिया, जिसने समय की कीमत को समझ लिया, उसका जीवन धन्य हो जाता है। ये जो मनुष्य का जीवन है ये आसानी से नहीं मिला है। अनंत जन्मों की यात्रा का प्रतिफल है कि हम मनुष्य के रूप में प्राप्त हुए और एक मनुष्य ही है जो अपने जीवन में ज्ञान अर्जित कर सकता है। एक बात कह करके फिर अपनी बात को पूर्णता की ओर लेके जाएंगे। आपने शायद कभी किसी ने भागवत के इस प्रसंग को श्रवण किया होगा कि भागवत की कथा ही जहां से प्रारंभ होती है वो विषय था कि जब परीक्षित को तक्षक नामक सर्प के डसने से श्राप लगता है कि आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने से तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तब परीक्षित अपने राजभवन का त्याग करके अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठा के गंगा के तट पर आकर के बैठ गए। और जब गंगा के तट पर आकर के बैठे तो उनको उद्धार करने के लिए कौन पहुंचे थे? श्री सुखदेव भगवान। श्री सुखदेव भगवान परीक्षित को कथा सुना रहे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बात छोटी सी पर जीवन को बहुत दृष्टि देने वाली बात है। तो परीक्षित जी के पास जब सुखदेव जी पहुंचे तो परीक्षित को यकीन ही नहीं हुआ। वो कहते कि ये श्राप है कि वरदान है। जीवन में संत के दर्शन मिल जाए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। अरे सुखदेव जैसे महाराज का दर्शन तो अति दुर्लभ है और ये श्राप नहीं, ये वरदान है कि गंगा का किनारा हो और संत का सम्मुख दर्शन हो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। तब चौकोर ये बात फैल गई कि जो सुखदेव भगवान कहीं 2 पल ठहरते नहीं थे
वो परीक्षित का उद्धार करने के लिए गंगा के तट पर पहुंच गए और परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। तब सुधा पंथम गई देवा देवा तत्र समागमन, वो देवता हाथ में अमृत का कलश लेकर के पहुंचे गंगा के तट पर और ले जाकर के उन्होंने श्री सुखदेव भगवान से प्रार्थना की कि इनको श्राप लगा है कि आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आप मृत्यु से बचाने के लिए कथा सुना रहे हो ना इनको, एक काम कीजिए, आप इनको अमृत पिला दीजिए और इनके बदले में हमको कथा सुना दीजिए। अब विचार कीजिए जरा कि उस अमृत को पाने के लिए देवासुर संग्राम हुआ था, देवताओं और असुरों में समुद्र मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन में से ये अमृत निकला है 14 रत्न में से एक अति दुर्लभ, और उस अमृत को पाने के लिए कितना संघर्ष हुआ। और वही देवता कह रहे कि अमृत ले लो, इसके बदले में हमें कथा सुना दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तब परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, इस अमृत को पाने से क्या होगा, इस कथा को सुनने से क्या होगा? तब श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि देव वत्स, तुम यदि इस अमृत को पियोगे तो तुम दीर्घ जीवी बन जाओगे, और तुमने यदि इस कथा को श्रवण कर लिया तो तुम दिव्य जीवी बन जाओगे। ये जीवन छोटा हो पर सार युक्त हो, जीवन लंबा जीवन जी करके, लंबा जीवन तो कछुआ भी जीता है ना, लेकिन छोटा जीवन लक्ष्मीबाई का, भगत सिंह का, हाँ विवेकानंद जी का, आदि गुरु शंकराचार्य का जीवन छोटा है परंतु दिव्यता से भरा है। इसलिए मैंने कहा कि जीवन में यदि आपके पास विवेक है और सही समय पर समझ आ गई तो जीवन दिव्य बन सकता है। इसे समय की कीमत उनसे पूछो, 1 साल की जो बच्चा क्लास में फेल हो जाता है वो बताएगा कि 1 वर्ष की कीमत क्या होती है। 1 महीने की कीमत उससे पूछो, जिसने महीने भर काम किया हो परंतु उसको सैलरी ना मिली, वो बताएगा महीने की कीमत क्या होती है। 1 दिन की कीमत उससे पूछो जो सुबह से भोजन जिसे ना मिला हो, जो भूखा हो। 1 घंटे की कीमत उससे पूछो जो बैठ के किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। 1 मिनट की कीमत उससे पूछो जिसकी ट्रेन उसकी आंखों के सामने से छूट जाए, और 1 क्षण की कीमत उससे पूछो जो मौत से बाल बाल बच जाए, वो बताएगा कि 1 क्षण की कीमत क्या होती है। इसलिए ये जीवन अति दुर्लभ है, ये मिला है, इस समय को व्यर्थ मत कीजिएगा। ये मनुष्य जन्म साधारण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता, इसलिए अपने जीवन में ज्ञान को अवश्य प्राप्त कीजिएगा। और जीवन में जब ज्ञान होता है तो व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के आत्मराम परमात्मा में मिलकर के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार आने जाने की प्रक्रिया से मुक्त हो जाता है। तो आप सबने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कभी भी भारत आए वात्सल्य ग्राम जरूर आए। घर में 2 बच्चे हैं, समझिए 1 बच्चा हमारा वात्सल्य ग्राम है जिसकी प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है। आप सबका सहयोग उन बच्चों का पोषण करना है, और आप जैसे सब महानुभाव के सहयोग के बल पर ही पूज्य दीदी माँ जी भारत में हजारों बच्चों को अपने आंचल में संभाले हुए हैं। तो आप सब उनकी ताकत बनेंगे, एक कदम साथ चलेंगे तो वो कार्य और आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रिश्ता पुराना है, इन आँखों से हर आंसू मुझको चुराना है। बस यही भावना के साथ वात्सल्य ग्राम की सृष्टि बनी। मैं आप सबका इस पवित्र संकल्प और प्रकल्प के साथ जुड़ने के लिए आह्वान करती हूँ। Come, contribute generously. Your support will help us reach a developed India we have always dreamt of. अपने देश पर गर्व हो रहा है ना, मोदी जी जैसा नेतृत्व आप सबको प्राप्त हुआ है। हमारा देश कहाँ से कहाँ आगे बढ़कर जा रहा है। लोग तो चांद की कल्पना करते थे, हमारा देश चांद तक पहुँच चुका है। इसलिए अपने देश की प्रगति के लिए कठोर देश में
तेरा रंग बिरंगा चल तेरा रंग बिरंगा जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे